Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome everybody. I am Dr. Amjadri and today I would be delivering lecture 8 for the course of Advances in Human Resource Development and Management. So before proceeding further, let me give you the recap of lecture 7. In previous lecture, we have discussed why careful selection is important for an organization, that it can save cost, it can save certain lawsuits in case it has gone for some other discriminatory selection. It can actually base its organization performance on the skills, abilities and characteristics of its employees that have been actually selected by this selection process. Well, selection is very much important because none of the technique in order to enhance employee productivity can be fruitful unless until we have capable, motivated and able employees with us. So organization may go for enhancement of productivity through new incentive program, through new training programs, or redesigning the jobs, or introduction of new technology. No plan can work well unless we have capable and motivated employees with us. So it actually forms a base for an organization to achieve employee productivity or performance. So what is selection? Selection actually starts from the point where recruitment has identified a pool of potential applicants to be placed on jobs, and यहाँ से ये start होता है selection process, और हम इसमें evaluate करेंगे, हम उसको check करेंगे abilities, उनके skills, उनके knowledge, उनकी behavior, उनके personalities check करेंगे, and we would be actually coming to final point where we would be having identified that these are the job description of the job for which we are going to fill the vacancies, and these are the employee characteristics. So we are to actually make a very positive match between the characteristics of the job and characteristics of the applicant. So selection process start होता है जब हमारे पास applicant pool होता है, फिर हम उसमें से ये सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो हम सिलेक्शन प्रोसेस में एक्चुअली डिफरेंट स्टेप्स हैं. First, we would be actually inviting resume, applicant resume and job applications. हम इनकी स्क्रीनिंग करेंगे, फिर हम उनके certain ability के या उनके intelligence के टेस्ट लेंगे, physical ability के टेस्ट लेंगे, उनके personality के टेस्ट ले सकते हैं, या certain times medical या honesty के टेस्ट हम conduct करते हैं. On the basis of this, then we have trimmed the pool of applicant to next margin. हमने और ज़्यादा से कम कर दिया. फिर इसमें से हम पिक करेंगे इंटरव्यूज़ के लिए. फिर इंटरव्यूज़ में से जो हमें सुटेबल लगेंगे उनको हम बैकग्राउंड चेक करेंगे, रेफरेंस चेक करेंगे, कहाँ वाकई दे हैव कंप्लीटेड देयर कॉलेज या यूनिवर्सिटी डिग्री, और द organization for which this person has served have actually found this person a productive one, और इसने वहाँ से क्यों छोड़ी जॉब, और इसके कोई दूसरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कहीं पे इसने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया हुआ. ये सारी चीज़ हम उसके बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के थ्रू चेक करेंगे. फाइनल हम फिर उसको जॉब ऑफर देंगे. सो दिस वाज अ सिलेक्शन प्रोसेस. In that lecture we have discussed screening applications and resume, कि हम किस तरह application और resume को screen करते हैं, उसमें on the basis of requirements, education requirements और experience के requirements, या हम दूसरे कोई abilities के requirement check करके और फिर हम इसको उसमें से शॉर्ट करते जाए. जितने हमारे पास पूल है उसमें से शॉर्ट करते हैं, ये सुटेबल नहीं, ये सुटेबल, और एट द एंड वी वुड बी एक्चुअली हैविंग आइडेंटिफाइड दैट दीज आर सुटेबल कैंडिडेट्स हु मे बी सेंड टू नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? टेस्टिंग एंड रिव्यूइंग वर्क सैंपल्स. यहाँ पे हमने उनके टेस्ट लेना है. एबिलिटी के टेस्ट हो सकते हैं, उनके IQ के टेस्ट हो सकते हैं, उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के टेस्ट हो सकते हैं, उनके डिफरेंट वर्क सैंपल्स में उनकी टाइपिंग चेक हो सकती है, उनकी ड्राइविंग चेक हो सकती है,
या उनसे हम कुछ वर्क सैंपल्स ले सकते हैं। जैसे किसी की एड्स बनी हो, जो हमने एक एड डेवलपर अगर हायर करना है तो उसने जो एड्स बनाई हैं अपनी प्रीवियस जॉब में, तो वो हम चेक कर सकते हैं। एक अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर लेना है तो उसने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं हम वो चेक कर सकते हैं। अगर कोई हमने इस तरह के फाइनेंशियल एनालिस्ट लेना है तो उसने जो बनाई हैं बैलेंस शीट्स बनाई हैं तो वो हम चेक कर सकते हैं। अगर हमने ग्राफिकल डिज़ाइनर लेना है तो उसने जो डिज़ाइन बनाए वो चेक कर सकते हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनर के हम डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। इस तरह ये हम वर्क सैम्पल्स उनके चेक कर सकते हैं। So after testing and review, we have further narrowed down this applicant pool, और अब हम फिर इस स्मॉलर पूल से हमने फर्दर इसको स्क्रीन करना है थ्रू इंटरव्यू एंड फाइनल चेक्स। तो अब भी हम इस लेक्चर में हम सिलेक्शन प्रोसेस के 3 स्टेप्स पढ़ेंगे। एक उसमें उसके इंटरव्यूज, दूसरा उसके रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक, और तीसरा मेकिंग फाइनल डिसीजन। और सिलेक्शन प्रोसेस तब कंप्लीट होगा व्हेन वी हैव एक्चुअली प्लेस्ड देम ऑन जॉब्स। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट वी वुड बी डिस्कसिंग इन today's lecture. Here regarding this interview and background checks, so what would be the contents or learning objectives for this lecture 8? So here we would be discussing what is a selection interview. Selection interview क्या है, इसकी types क्या है, interviews के advantages और disadvantages क्या है, इसके effective interviewing क्या है, how we can avoid common interviewing mistakes, हम mistakes कैसे avoid कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैसे हम चेक कर सकते हैं, हाउ वी वुड बी सेकंड स्टेप। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हैं इंटरव्यूज़। ये है जी बैकग्राउंड चेक, नेक्स्ट स्टेप। ये है जी सिलेक्शन डिसीजन और जॉब ऑफर। नेक्स्ट हम उसको रिलोकेशन असिस्टेंस दे सकते हैं और प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज। सो प्लेसमेंट हमने कर दिया। नाउ दिस सिलेक्शन प्रोसीजर इज कंप्लीट। नाउ स्टार्टिंग विद द लेक्चर, today's lecture, what is a selection interview? Well, actually selection interview is a selection procedure. हमने पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में देखा ना कि डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टार्टिंग विद दिस एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे, ठीक है। उसके बाद हमने कहा कि इनके हम चेक करते हैं, टेस्ट लेते हैं और वर्क सैंपल लेते हैं। वर्क सैंपल, इसके बाद हम इंटरव्यू करते हैं और इसके बाद हम बैकग्राउंड चेक करते हैं और इसके बाद फाइनल सिलेक्शन। सो सिलेक्शन इंटरव्यू इज अ सिलेक्शन प्रोसीजर। ये यहाँ पे ठीक है, इट्स अ सिलेक्शन प्रोसीजर डिजाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस। सो हियर वी आर गोइंग टू प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेंट्स oral responses to oral inquiries. So basically interview is a one-to-one communication or one-to-many communication depending upon the situation. Here they exchange ideas, and on the basis of this exchange of ideas, the interviewers would be assessing or would be determining their future job performance on the given job. Students, यहाँ पे पहले आपको ये क्लियर हो कि जी who is the interviewer and who is the interviewee. Interviewee और दूसरा क्या है जी इंटरव्यूअर। बड़ी ये ट्रिकी सी टर्म्स हैं, हम कैसे इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो इंटरव्यूअर है इंटरव्यू करने वाला, इंटरव्यू लेने वाला, और इंटरव्यू है जो इंटरव्यू देने वाला है। ये जॉब एप्लीकेंट है, ये एप्लीकेंट है, और ये क्या एम्प्लॉयर है, ठीक है ना। ये क्या है, एम्प्लॉई है। आप इसे याद कैसे रखेंगे, इस तरह याद रखें। एम्प्लॉई याद है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है बंदा, और दूसरी साइड पे एम्प्लॉयर है जिसने वो जॉब दी है। सो एम्प्लॉई इज
actually appearing for interview as interviewee. So ठीक है, एम्प्लॉय से याद रखना इंटरव्यूई और एम्प्लॉयर से याद रखना इंटरव्यूअर। एम्प्लॉयर इंटरव्यूअर होता है और एम्प्लॉय इंटरव्यूई होता है। तो हमारी डिस्कशन में ये बार बार चीज़ें आएंगी, इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर, सो बी केयरफुल। ठीक है, इंटरव्यू और इंटरव्यूअर का फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए, आप ज़हन में रखें कि इंटरव्यू याद रखें एम्प्लॉय से रिलेटेड है, एम्प्लॉय ने इंटरव्यू देना होता है, और एम्प्लॉयर जिसने आपको जॉब देनी है उसने इंटरव्यू लेना होता है, वो इंटरव्यूअर होता है। ये आपको इस तरह याद होना चाहिए। Well, these selection interviews may be conducted at 2 levels. Initial interview, that is to be done by any HR representative, and at a later stage, in-depth interview may be conducted by a panel that is comprised of HR person, some technical manager from the technical department, and some person from a responsible position. तो एक पैनल सब बना के कर सकते हैं जो कि उसका सेकंड इंटरव्यू यूजुअली कहा जाता है। Why we conduct interview? ठीक है, इंटरव्यू क्यों करते हैं? टू गेट एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो उनके बारे में और ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। एक्चुअली हम इंटरव्यू को कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है, ये बहुत ज़्यादा वैलिड है, हमें नज़र आता है कि इस तरह। वेल एक्चुअली इट मे नॉट बी द केस, बट employers or employees or organization, or it's a general perception that interview is a most commonly used selection process or procedure. ठीक है ना, हम इसमें कहते हैं इसकी वैलिडिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिल्कुल ना हो, या हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन अज्यूम किया जाता है कि इंटरव्यू इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिलेक्शन प्रैक्टिस बाय द ऑर्गेनाइजेशन। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था कि जी ये जो आपके हमने वहाँ पे आपकी जॉब एप्लीकेशंस और रेज्यूमे देखे थे, तो उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयर्स चेक कर सकते हैं द इंफॉर्मेशन एम्प्लॉयज प्रोवाइड बाय मेकिंग कंपैरिजन बिटवीन जॉब एप्लीकेशन एंड रेज्यूमे। उसमें आप इंटरव्यू में क्या एप्लीकेशन थे और आपके बैकग्राउंड चेक से क्या इन्फॉर्मेशन आती है। तो यहाँ भी ये भी हो सकता है कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में जो भी इंफॉर्मेशन आए, अब यहाँ पे क्या इंटरव्यू में इंफॉर्मेशन, आपके बैकग्राउंड चेक से इंफॉर्मेशन, और जो आपकी एप्लीकेशन और रिज्यूमे में इंफॉर्मेशन, तो उसमें कंपैटिबिलिटी और उसमें मैच चेक कर सकते हैं ये इंटरव्यूज़ में, कि आपने वाकई यहाँ से पढ़ा है, आपने वाकई इधर काम किया है, ठीक है ना, या आपने वाकई सारी चीज़ें अचीव की हैं। सो एक्चुअली यू कैन चेक, यू कैन एक्चुअली प्रूव द सिचुएशन, प्रूव द एप्लीकेंट ऑन वेरियस avenues or dimension. This interview can be conducted to evaluate applicants qualification. तो वो जो कहता है कि मैं जावा में एक्सपर्ट हूँ, या मैं आई एम एक्सपर्ट ऑन पब्लिक रिलेशंस, आई कैन मेक डीलिंग्स विद मीडिया, विद सोसाइटी, विद प्रेस, विद ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये कैसे चेक हो सकते? थ्रू इंटरव्यू। पर इंटरव्यू में उनसे पूछा, हाँ जी टेल अस हाउ यू वुड बी डूइंग, हाउ यू वुड बी अचीविंग दिस टास्क, और हाउ यू वुड बी एक्चुअली excelling you in this avenue or on this job। या आप ये एक पर्टिकुलर आप कह लें कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखनी है, ये कैसे होगी, या आपने एक रिसर्च करनी है, ये कैसे होगा, आपने एक प्रोजेक्ट रन करना है, ये कैसे होगा। तो डिफरेंट चीज़ें उनसे पूछ के तो उसकी क्वालिफिकेशन को चेक किया जा सकता है। इसमें वो लाजमी नहीं है कि एजुकेशन की, दूसरी चीज़ें जो एक्सपीरियंस जो भी कह रहा है, वो सारी चीज़ें इंटरव्यू के थ्रू चेक की जा सकती बाई आस्किंग oral questions। While this is not a one way direction के ऑर्गेनाइजेशन ये सारा फोकस कर रही है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात थी, ये अब आगे एम्प्लॉय की। While being interviewed, applicants can form opinions about the organization, so they would be actually forming their opinions, they would be assessing the organization for which they would be working in future। कि जिस ऑर्गेनाइजेशन मैंने अप्लाई किया, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जॉब मिलेगी, जहाँ पे मैंने काम करना है, ये कैसा एम्प्लॉयर है, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसके मैनेजर का क्या फोकस है, इसके मैनेजमेंट की क्या फ़िलासफ़ी है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन बी असेस्ड बाई एप्लीकेंट्स ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। सो बीइंग इंटरव्यूअर, आप जब इंटरव्यू कर रहे होंगे तो सो यू
should be very much careful regarding making impression of the applicant about the image of your organization. तो आप उस टाइम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बना रहे हैं, तो आपने इमेज ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनानी है दैट इज़ फेवरेबल, दैट इज़ पॉजिटिव. आपने पॉजिटिव अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करना है, इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव या लूज नहीं आपने छोड़नी. तो आपका बिहेवियर बहुत ही उसमें सेंसिटिव, बहुत ही जचा तुला होना चाहिए. इसमें कहीं पे भी आपने लूज नहीं करना है, कहीं पे भी आपने ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे जो एप्लीकेंट है वो नेगेटिवली असेस करे. आप कहीं पे भी कोई सार्कास्टिक रिमार्क्स, आप कहीं पे नेगेटिव रिमार्क्स और कहीं पे भी आप जो नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर वो नहीं आपने शो, कहीं पे भी अनएथिकल बिहेवियर नहीं शो करना है, कहीं पे भी आपने लेस टू द एक्सीलेंस, लेस देन द एक्सीलेंस वो चीज़ें शो नहीं करनी. आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए एज एन इंटरव्यू, बिकॉज योर बिहेवियर इज़ फॉर्मिंग द ओपिनियन ऑफ द एप्लीकेंट. तो आपको वो देख के एज इंटरव्यूअर एप्लीकेंट्स आपको देख के तो अपने ओपिनियन बना रहे हैं अबाउट ऑर्गेनाइजेशन. सो वेरी स्लोपी बिहेवियर ऑफ वन ऑफ द इंटरव्यू मे एक्चुअली डिस्करेज पोटेंशियल एप्लीकेंट टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो वो आपने उसे ऑफर दे दिया लेकिन वो नहीं आ रहा क्योंकि उसने कहा कि ये तो बड़े नॉन प्रोफेशनल हैं, या इनका तो बिहेवियर ठीक नहीं है, या ये दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी, ठीक है ना, या उनकी कॉर्पोरेट सिटीजनशिप या उनके कॉर्पोरेट एंटिटी ऐसी नहीं है जो एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को होना चाहिए. वो आपको असेस कर रहे हैं. तो आपकी असेसमेंट के बेस पे हो सकता है एक पोटेंशियल एप्लीकेंट जो आपके लिए बहुत अच्छा एम्प्लॉय साबित हो सकता था, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर दैट यू एग्जिबिट ड्यूरिंग द इंटरव्यू. सो बी केयरफुल while you are appearing for interview and as well as you are conducting interview. So this was something about selection interview. Now we have to discuss types of selection interview. तो selection interview किस तरह के हो सकते हैं? देखिए इंटरव्यू तो मीडिया में भी होते हैं, वो भी इंटरव्यू होते हैं. इंटरव्यू एडमिशन के लिए भी होते हैं, और इंटरव्यू कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है ना. तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिलेक्शन इंटरव्यू के व्हाट आर द एक्चुअल टाइप्स ऑफ सिलेक्शन इंटरव्यू, द इंटरव्यूज दैट आर conducted by the organization to select its employees. So we can discuss it on the basis of the extent to which these interviews are structured. इनका structure कितना ज़्यादा है. तो ये जो हम पहले कहते हैं behavioral interview या competency situational interviews, these are structured interview. तो यहाँ पे क्या structure क्या है, इस साइड पे structure क्या है, हाई है, more structured interviews हैं. और इसकी लोअर साइड पे ये स्ट्रेस इंटरव्यू, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू और काउंसलिंग, दीज आर लेसर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर. तो इंटरव्यू का स्ट्रक्चर के बेस पे हम डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स हैं, और जितना ज़्यादा दूसरी साइड पे देखेंगे उसकी सिलेक्शन वैलिडिटी कि उसकी वैलिडिटी कितनी ज़्यादा. लास्ट हमने पढ़ा था कि किसी भी टूल को वैलिड होने के लिए it should be reliable, valid, generalizable, it should offer certain utility as well as it should be legal. तो जो आपके स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हैं, जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होंगे उतने ज़्यादा वैलिड हैं. क्या सिलेक्शन वैलिडिटी क्या हाई है, किस एंड पे, जहाँ पे स्ट्रक्चर हाई है, और ये आपकी सिलेक्शन वैलिडिटी लो है उस एंड पे जिधर आपका स्ट्रक्चर ऑफ इंटरव्यू वो लो है. Now we are going to discuss each of these interviews in detail. So first of all, there are certain structured interview. Well, with a structured interview we use a set of standardized questions that we ask from all of the job applicants. हमने पहले से questions लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 questions लिखे हुए हैं, और वो वही क्वेश्चंस हम हर एक एप्लीकेंट से कर रहे हैं. आपने बहुत दफ़ा इंटरव्यू दिए होंगे जिसमें सिचुएशन इस तरह होती है कि एक एंड से एप्लीकेंट आता है
इंटरव्यू का प्रयोग होता है, फिर वो वहीं से उसे गाइड करते हैं कि आपने नाउ यू आर टू लीव द प्रेमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू शुड नॉट बी गोइंग बैक टू द room where applicants are waiting for their interview just because they were following a structured interview. आप वापस जाएंगे तो आप से पूछेंगे क्या सवाल पूछ रहे हैं, आप वो सवाल उनको बता देंगे. सो फॉर नेक्स्ट जो एप्लीकेंट्स उनके लिए ये बहुत आसान इंटरव्यू, दे मे थिंक ओवर द पॉसिबल आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चंस. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन इंटरव्यू में हम क्वेश्चंस, एक प्री डिटर्मिनेट सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं दैट वी आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ द जॉब एप्लीकेंट्स. ठीक है, सो पहले से डिटर्मिन होते हैं. सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, so they may be related on the requirements set out in job description. तो ये जो questions that we ask during structured interview may be related to job description. जो आपकी job description है ना कि आपने ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, शेड्यूलिंग करनी है, रूटिंग करनी है, लोगों से क्लाइंट से मिलना है, उनको प्रेजेंट करनी है प्रोडक्ट और उनसे सेल्स लेनी है. देन यू आर टू फॉलो अप ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ और आपने अपने एनुअल वीकली या मंथली टारगेट्स जो ना वो अचीव करने हैं. जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं. इट क्वेश्चन में बी रिलेटेड टू कैंडिडेट्स नॉलेज दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म जॉब परफॉर्म करने में जो नॉलेज चाहिए उससे रिलेटेड हो सकते हैं कि जी आप एक्सप्लेन करें कि जी क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, जावा क्या है. ठीक है ना, दे मे बी एक्चुअली telling about the level of knowledge that you have while to perform on that job, that is relevant, job relevant knowledge. अच्छा, फिर इसमें कुछ और चीज़ें, job related personal requirements. तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि are you willing to relocate. तो आपकी जॉब क्या है, क्या जी ये इस्लामाबाद या कराची में बेस्ड नहीं है, ये क्या है जी चकवाल में या मियाँ वाली में बेस्ड है, ठीक है, या सरगोदा में बेस्ड है. तो ये कैसे है, आपसे पूछ के योर विलिंगनेस टू रिलोकेट, दे आर एक्चुअली चेकिंग द सुटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेंट्स ऑन द जॉब. अच्छा, इसमें और क्या हो सकते हैं कि जी वुड यू बी विलिंग टू ट्रैवल. ठीक है ना, आप रिलोकेशन पे पूछ सकते हैं, ट्रैवल पे पूछ सकते हैं. Would you be willing to work for extra hours. ठीक है ना, आप नाइट में काम कर सकते हैं. ठीक है, तो ये डिफरेंट चीजें हैं दैट आर जॉब रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स. सो यू कैन आस्क फ्रॉम दीज पार्टिसिपेंट्स ऑन अ प्री सेट क्या लिखे सीक्वेंस और डिटर्मिनेशन. आप उनसे ये चीज़ें पूछते हैं. सो एक्चुअली दीज क्वेश्चंस, आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी गाइडिंग यू टू डिसाइड अबाउट द सुटेबिलिटी ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब. अच्छा, अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स का, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के बेनिफिट्स क्या हैं. दीज आर यूजफुल फॉर इनिशियल स्क्रीनिंग. तो स्टार्ट में जो स्क्रीनिंग करनी है उसके लिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकते हैं. शुरू में आप पूछ लें कि जी आप क्या नाइट की शिफ्ट में काम कर सकते हैं, तो जो लोग कहेंगे नहीं, सिंपल आउट. ठीक है, आप विलिंग टू ट्रैवल हैं, ठीक है ना, वो जो हाँ कहेंगे ठीक है, नहीं कहेंगे आउट. ठीक है ना, इनिशियल स्क्रीनिंग में यूज होते हैं ये. दीज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू ऑब्टेन कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन needed for selection decision. So because we have followed a predetermined structure, so we at the end we would be we would have obtained consistent set of information from all of the participants. हमारे पास सबके बारे में इंफॉर्मेशन है कि जी ये लोग रिलोकेट कर लेंगे, ये ट्रैवल कर लेंगे, ये नाइट में काम कर सकते हैं, ये कह लें कि दे कैन वर्क अंडर स्ट्रेस, दे कैन मीट डेडलाइंस. तो ये सारी चीज़ें चेक करके हमारे पास स्टैंडर्ड एक आ जाती है वैल्यूएशन. तो हम क्या कर सकते हैं, उनको कंपैरिजन कर सकते हैं. ठीक है ना, दिस एक्चुअली एनेबल्स अस टू मेक कंपैरिजन अमंग एप्लीकेंट्स इजी. चूंकि हमने एक सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन पूछी है सबसे, सो इट मेक्स वेरी इजी फॉर द HR department or for the management of the organization to set to decide about the and compare all of the applicants on that for that position. सबको हम compare कर सकते हैं. इसमें अब हमारे पास suitable कौन सी है. तो इसमें
प्री डिटरमिनेट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, सबसे पूछते हैं और इसकी बेस पे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या है जी, दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू अलाउ इंटरव्यूअर टू प्रिपेयर जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस इन एडवांस। तो आप पहले से सारे जो है ना जॉब डिस्क्रिप्शन देख के, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के, तो आप सारे अपने क्वेश्चंस सारे लिख लें, 1 2 3 5 6, ठीक है ना, आप सारे क्वेश्चंस लिख लें। सो इट बिकम्स वेरी इजी to conduct such interviews because you have written down all of the questions and you would be asking all of the questions in the same sequence. और ये अब क्या है, for this type of interview, because you can write, you have the ability to write the questions that you would be asking in advance to the interview, so it's an easy way to easy approach to conduct interviews. So less trained employees, less trained interviews can also conduct these interviews. So here there is an option that you can a standardized interview evaluation form can be developed. तो because आपने सारे वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं, इनके अगेंस्ट यस नो या फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी या कह लें कि एग्रीएबलनेस चेक करके उनके पॉइंट्स आप लगा सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली डेवलप अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू इवेल्युएशन फॉर्म, जो उनको इवेल्युएट करने का एक फॉर्म बना सकते हैं। एक तो कंपैरिजन इजी ना, आप ज़रा ज़्यादा इसमें काम करें, ज़्यादा मेहनत करें, तो इसमें से हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो भी उसका आंसर है उसको आप पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है ना। फॉर यस आप कह रहे हैं कि जो इस क्वेश्चन के अगेंस्ट यस कहेगा उसे आप देंगे 20 मार्क्स, जो कह लें कि प्रोवाइडेड with vehicle or provided extra payment, I can work on this, ठीक है ना, तो उसे आप 10 दे दें, जो नो कहे और उसे आप 0 दे दें। तो इस तरह एक फ्रेमवर्क बना लें that how you would be allocating marks on various responses against various questions। इस तरह मार्क्स बना लें, उन मार्क्स को टोटल क्या लेके एड अप कर लें, और नाउ इट वुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड इंटरव्यू evaluation form. It makes a very easy approach कि structured interview यूज करते हुए आप questions identify करें, उसकी sequence बनाएं, उसमें probable answers identify करें और उसके marks पहले से set कर लें और उस तरह marks देने शुरू कर दें। Let's say आप उसकी qualification पूछते हैं, ठीक है ना, तो qualification में अब very easy है कि आप कहें कि जी जो जिसने MA किया है उसको 20 है, जिसने BA किया है उसके 15 है, जिसने इंटर किया उसके 10 है, जिसने मैट्रिक किया उसके 5 मार्क्स हैं, ठीक है, या मैट्रिक किया उसके 0 है। जैसे भी आप इस तरह मार्क्स डिटरमिन कर लें और इन मार्क्स की बेस पे आप उसकी फाइनल जो कैलकुलेट करके मार्क्स, उसकी बेस पे आप आराम से उसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। हमने पहले भी पढ़ा कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होगा उतना ज़्यादा ये वैलिड है, ठीक है, बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये दीज आर एसेंशियली जॉब रिलेटेड, इसमें कहीं हम इररिलेवेंट चीज़ तो पूछ ही नहीं रहे, ठीक है ना, और हमने सबके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, ये क्या है यहाँ पे रेलेवेंट पूछ रहे हैं क्वेश्चंस और इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाया हुआ है, और हम सबसे सिमिलर क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक ही तरह वैलिडेट कर रहे हैं, तो इट मेक्स दिस अप्रोच वेरी रिलायबल एंड वैलिड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या है, ये ज़्यादा वैलिड है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टेक्निक्स। अच्छा, अब अगर हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फॉलो करेंगे सो एक्चुअली रिड्यूसेस द रिस्क फॉर वायलेटिंग इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी गाइडलाइंस। तो अगर आपने कोई ऐसा करना है जिसमें डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन ना हो, सो यू मे फॉलो दिस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू पैटर्न। नेक्स्ट क्या टाइप्स जी, अंडर दिस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वी कैन ऑल्सो कंडक्ट सर्टन बिहेवियरल इंटरव्यूज। बिहेवियरल इंटरव्यूज में हम उससे पूछते हैं कि जी अगर इस तरह की चीज़ है तो आपने इसको कैसे डील किया, कैसे टैकल किया, हाउ डिड यू कम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ डिड यू एक्चुअली हैंडल दिस सिचुएशन,
और डिड यू एक्चुअली कन्विंस्ड अ डिसग्रंटल्ड कस्टमर। तो इस तरह की हम चीज़ें पूछते हैं कि टेल अस अबाउट बिहेवियर इन सर्टन ऑन सर्टन टास्क, आपने ये चीज़ कैसे की है। तो वेल बिहेवियर इंटरव्यूज applicants are asked to give specific examples of how they have performed a certain task or handled a problem in the past। पास्ट में आपने क्या किया है, ठीक है ना, कैसा आपका बिहेवियर रहा है। सो इसके अब रैशनल क्या है, व्हाई वी कंडक्ट दिस बिहेवियरल इंटरव्यू इन ऑर्डर टू मेक इट अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, बिकॉज it helps discover applicants' suitability for current jobs based on past behavior। तो ह्यूमन बीइंग्स जो है ना, इनके बिहेवियर टू सर्टन एक्सटेंट स्टेबल रहते हैं, चेंज नहीं होते। ये नहीं होता आज मेरा बिहेवियर पॉजिटिव तो कल नेगेटिव, अगर आज मेरा बिहेवियर नेगेटिव तो कल को पॉजिटिव नहीं हो जाएगा। अगर मुझे चोरी की आदत है तो मैं कल भी करूँगा, ठीक है। अगर मुझ में ऑनेस्टी है तो ऑनेस्टी रहेगी, अगर मैं हार्ड वर्किंग हूँ तो हार्ड वर्किंग हूँ, अगर मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड हूँ तो मैं उसी तरह रहूँगा। तो बिहेवियर क्या ना, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर देयर फ्यूचर बिहेवियर कैन बी प्रिडिक्टेड। सो इट्स वेरी क्लियर कि बाय आस्किंग देयर past behavior we can actually assess or we can forecast their future performance on the job for which we are actually selecting this person। तो इसमें क्या है रैशनल, हम उसके पास बिहेवियर पूछ के तो चेक करें कि जी हाउ यू वुड बी परफॉर्मिंग ऑन दिस जॉब। Well, this approach also assumes that applicants have had experience that is related to the problem or job। तो इससे हम ये भी देख लेते हैं कि जी आपका कितना एक्सपीरियंस है, सेल्स में कितना एक्सपीरियंस है, कस्टमर सर्विस में कितना एक्सपीरियंस है, जॉब अपना ऑर्डर्स फिल करने में कितना एक्सपीरियंस है, परचेजिंग करने में कितना एक्सपीरियंस है, मीडिया हैंडल करने में। तो इस उसके जो इंस्टांसेस हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उससे हमें आइडिया होगा कि हाउ मच वैलिड आर relevant or irrelevant experience this person has, ठीक है ना। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि इसका एक्सपीरियंस रेलेवेंट है या रेलेवेंट नहीं है। Well, against this approach we can score their behavior by using certain predetermined dimensions, ठीक है। तो उससे हम देख सकते हैं कि जी इसकी सेल्स क्वालिटी वो क्या थी, इसका बिहेवियर ऑफ क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विद क्लाइंट्स वो कैसा था, इसका क्वालिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कैसी थी, इसकी क्वालिटी ऑफ इनोवेशन विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर हैंडलिंग और विद रिस्पेक्ट टू कस्टमर सर्विस वो क्या कितनी थी। सो वी कैन एक्चुअली गिव स्कोर टू डिफरेंट रिस्पॉन्सेज बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज आर बिहेवियर्स। हम डिफरेंट, जैसे हमने प्रीवियस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में कहा, तो इसमें भी हम उसके डिफरेंट बिहेवियर्स को पॉइंट्स दे सकते हैं, 10, 7, 5, 3, 0। इस तरह हम उसको सर्टन बिहेवियर्स को, सर्टन एग्जांपल्स को हम पॉइंट्स दे सकते हैं, और इन पॉइंट्स को हम क्या लेके फिर यूज़ कर सकते हैं एज अ selection base। Now because behavioral interviews are based on the rationale that we can predict their future performance on the basis of their past behavior, as well as it shows us that employee or applicant has some relevant experience that to the job, as well as by following an objective approach। ये क्या objective approach, behavioral interviews provide better validity। तो ये क्या valid है, इसमें हम उसकी असेस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को बाय द वे ऑफ देयर प्रीवियस बिहेवियर्स, प्रीवियस वर्क परफॉर्मेंस, उसमें देखना कि उसने क्या किया है, बिहेवियरल इंटरव्यू। सो व्हाट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, हियर वी कैन कंडक्ट सिचुएशनल इंटरव्यू। इट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस बिहेवियरल इंटरव्यू। Here applicants are asked how they would respond। अब क्या है, how they have respond, now how they would respond to a specific job situation that is related to the content of the job they are seeking। उस जॉब से रिलेटेड आप उससे कोई सिचुएशन पूछते हैं कि जी आप रिटेल स्टोर के मैनेजर हैं, तो अगर इस तरह का कस्टमर आता है तो आप उसे कैसे डील करेंगे, ठीक है। अगर कस्टमर आपके साथ इलॉजिकल आर्गू कर रहा है तो आप इसे कैसे डील करेंगे।
अगर आपके पास आप सेल्स करनी है और सेल आपका जो क्लाइंट है वो ये रिक्वेस्ट कर देता है कि आपका यूजुअली ये पॉलिसी नहीं है लेकिन मुझे इस तरह चाहिए प्रोडक्ट, इतने टाइम में चाहिए, इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ चाहिए, इस रेट पे चाहिए, सो हाउ यू वुड बी सॉल्विंग दिस सिचुएशन. सो दिस टाइप ऑफ in this type of interview we actually ask their response, ask their strategy that they would be actually using in order to solve that situational problem. उस situation में जहाँ पे हमने उसे put किया ना, उसमें से ये कैसे निकलेंगे, कैसे उसको सारी चीज़ों को tackle करेंगे. For this situational interviews, job experts may rate responses in order to rank applicants. जहाँ भी possibility है कि उनकी ranking हो सके, provided that there are job experts who can rate their responses. This was structured interview, situational interview. Within structured interviews, now another type of structured interview is a competency interview. Here questions are designed. स्टूडेंट्स इस पे हम उनकी कम्पिटेंसीज पे फोकस करते हैं. इंटरव्यूअर क्या करेंगे, उनकी कम्पिटेंसीज को मेजर, जो हमने जॉब एनालिसिस में कम्पिटेंसी अप्रोच पढ़ी थी ना, कम्पिटेंसी में हम डिफरेंट चीज़ें कह सकते हैं, लीडरशिप स्किल, टीम वर्क बिहेवियर, कस्टमर फोकस, ये डिफरेंट चीज़ें जिसे हम कहते हैं कि कम्पिटेंसीज हैं ये उनकी. अब ये इंटरव्यू जो कम्पिटेंसी इंटरव्यू, ये उसकी एक्चुअली कम्पिटेंसीज को चेक करने के लिए. सो व्हाट आर दीज हियर, क्वेश्चंस आर डिजाइंड स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड द इंटरव्यूअर विद समथिंग टू मेजर द एप्लीकेंट्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ कम्पिटेंसी प्रोफाइल. तो हमने पहले कम्पिटेंसी प्रोफाइल उसकी आइडेंटिफाई की है कि इस पोजीशन के लिए हमें उसकी लीडरशिप क्वालिटी, उसकी मैनेजरियल परफॉर्मेंस, उसकी टीम फोकस, उसकी फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी, फोकस ऑन क्वालिटी, ये डिफरेंट हमें चाहिए कम्पिटेंसीज. तो क्वेश्चंस हमने वो किए हैं दैट स्पेसिफिकली टू प्रोवाइड द इंटरव्यू विद समथिंग टू मेजर द एप्लीकेंट्स रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ कम्पिटेंसी प्रोफाइल. तो अब इसके अगेंस्ट हमने रिस्पॉन्स मेजर करना है, इनको मेजर करने सारी कम्पिटेंसीज को. इस तरह के हमारे क्वेश्चन है इस कम्पिटेंसी इंटरव्यू में. सो ऑल ऑफ ये जो कम्पिटेंसीज हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई की, ये सारे रिलेटेड है उस जॉब के साथ, फॉर द इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन दैट जॉब. सो कम्पिटेंसी इंटरव्यू में पहले हम एक लिस्ट ऑफ कम्पिटेंसी बनाएंगे दैट इज एक्चुअली रेलेवेंट फॉर इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑन दैट जॉब, और फिर हम क्वेश्चंस ऐसे वहाँ पे पूछने हैं दैट इज स्पेसिफिकली गोइंग टू असेस देयर competency, their level of their competency on these list competency profile. So these are few types of structured interview. Now what may be the less structured interviews are in-depth interview, are there are certain example non-directive interviews. Usually interviews conduct किए जाते हैं by certain line managers. प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, आपका मार्केटिंग मैनेजर हो गया, फाइनेंस मैनेजर हो गया, आपका कोई मैनेजर टेक्निकल हो गया, डिफरेंट जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं, वो अब अगर इंटरव्यूज करते हैं, दे हैव नो प्रिपरेशन, दे हैव नो ट्रेनिंग, सो दे गो अनप्लान्ड फॉर दीज इंटरव्यूज. ठीक है. और यहाँ पे फिर क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका डायरेक्ट कोई relation नहीं होता for that job or for the effective performance on that job. The most often asked questions in interviews within our environment is, tell me about yourself. Simple. Tell me about yourself. Introduce yourself. So it has no specific answer. It has no particular relation with the job for which the interview is going to be held. इसमें कोई चीज़ प्री डिटर्मिन्ड नहीं है, इसमें हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें. इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन दैट हाउ दैट पर्सन एक्चुअली परसीव्स दिस क्वेश्चन. सो ही मे बी टेलिंग अबाउट हिज आर पर्सनैलिटी, अबाउट हिज एजुकेशन, अबाउट हिज वर्क एक्सपीरियंस. तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं वो, और इसका एग्जैक्ट कोई पर्पज़ नहीं होता. सो लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इस जो अनप्लान्ड होते हैं, जिसमें इंटरव्यूअर्स की ट्रेनिंग नहीं होती, दे हैव नॉट
एक्चुअली गॉन थ्रू एनफ इंटरव्यू ट्रेनिंग और उसकी प्रिपरेशन नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते, इस तरह फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जिसका कोई अपरेंट पर्पस नहीं होता। अच्छा, इसमें लेक्स स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की यहाँ पे हम दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक नॉन डायरेक्टिव है, एक है जी स्ट्रेस इंटरव्यू। नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यूज में क्वेश्चन से फर्दर क्वेश्चन निकलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी asked from the interview that what did you like the most on your job, so that person replied that I have the most healthy or rich experience with my supervisor. So next question, what type of supervisor do you like? So these are the questions that are totally unplanned, unstructured, they have no sequence, or they have no clear purpose, they have no clear relation with the job description or employee specifications. कहीं पे भी उसका लिंक कोई नहीं है, सिंपल क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछा जाता है और at the end we have information about all of the applicants that cannot be compared, that on the basis of all of these information we cannot rank these applicants. Well, these interviews offer greater discretion in choosing questions to the interviewers. अब interviewers करिए इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये ज़्यादा उसके लिए flexibility, कुछ भी पूछ सकते हैं. So usually interviewers are expected that they would be asking questions that are related to the job. Irrelevant questions expect किया जाता है कि ये interviewers नहीं पूछेंगे. There is a possibility of obtaining possibility of not obtaining needed information. ये हो सकता है कि जो हमारी requirement थी वो हमने उससे पूछी ही नहीं. एक टीचर लेना है तो हमने उससे पूछा नहीं कि what teaching methodology would you use or how would you be controlling the students or controlling the class. हमने इससे वो चीज़ नहीं पूछा, हम उससे वैसे जर्नल उसकी यूनिवर्सिटी या उसकी डिग्री या उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछते रहते, वो नहीं पूछा जो उससे एक्चुअल जॉब रिलेटेड था. ठीक है, उसके जो स्किल्स चाहिए थे, उसका जो बिहेवियर चाहिए था, उसका जो एटीट्यूड चाहिए था, हमने वो नहीं पूछे उससे. सो एट द एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वी हैव नॉट ऑब्टेन्ड नीडेड और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स. अच्छा, इसमें एक और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड मे नॉट बी जॉब रिलेटेड और कंपेरेबल टू दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स. तो हम एक से हम उसके सब्जेक्ट के बारे में पूछते रहे, एक से उसकी पर्सनालिटी के बारे में पूछते रहे, एक से उससे प्रीवियस एम्प्लॉयर के बारे में पूछते रहे, एक से हम कुछ और चीज़ के बारे में. सो वी एट द एंड वी हैव इंफॉर्मेशन दैट वर नॉट नीडेड, दैट आर नॉट कंपेरेबल फ्रॉम अदर एप्लीकेंट्स. सो लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में हमारे पास एक्चुअली कोई बेस नहीं होती टू आस्क क्वेश्चंस and to have responses and to have actually relevant or comparable information. Well, at the end this less structured interview क्या इसमें क्या होता है, फिर comparing and ranking candidates is more open to subjective judgment. So यहाँ पे ज़्यादा possibility क्या, we may have gone for subjective judgment कि किसी अगर बॉस ने कह दिया उसमें जो चेयर कर रहे हैं सारे इंटरव्यू पैनल को, वो जो उसकी ओपिनियन है फिर उसकी कह लें कि असेसमेंट को फॉलो कर ली जाते हैं बाकी सारे पैनल मेंबर्स भी. तो इसमें सब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिविटी है उसके ज़्यादा चांसेस, या कि हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इसके इंटरव्यूज़ की मिस्टेक्स क्या हैं, ये एरर्स क्या हैं. तो उसमें अगर हमारे पास लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होगा तो उसमें एरर्स के कमिट करने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वे वी हैव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया to evaluate predetermined as answers to predetermined set of questions. अच्छा, इसके लेस स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में एक हमने ये नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू पढ़ लिया, दूसरा है जी स्ट्रेस इंटरव्यू. सिंपल, इसमें क्या है जी, वी एक्चुअली कंडक्ट दिस इंटरव्यू इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. सो हियर एन इंटरव्यू इज डिजाइन्ड टू क्रिएट anxiety and put pressure on an applicant to see how the person responds. उसको extremely stressful और anxiety वाली situation में put करके तो उनसे questions लिए जाते हैं, answers लिए जाते हैं. So it is actually useful for only certain positions that require to perform or to work under highly stressful situation, जैसे sales की situation हो गई है
या नेगोशिएशन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होगी इस तरह के, या मीडिया के साथ रिस्पॉन्ड करना, इस तरह की जॉब्स हैं जो स्ट्रेसफुल हैं, उसके लिए ये इंटरव्यू हो सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट सुटेबल टू कंडक्ट दिस स्ट्रेस इंटरव्यू फॉर यूजुअल जॉब्स, जिसमें आपने अपने पास लेने हैं प्रोडक्शन के एम्प्लॉइज़ लेने हैं, ठीक है ना, और परचेजिंग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज़ लेने हैं, आपने HR में एम्प्लॉइज़ लेने, तो ये स्ट्रेस इंटरव्यू या फाइनेंस या अकाउंटिंग या आपने ऑडिटिंग के लेने हैं, तो इसमें स्ट्रेस इंटरव्यूज़ नहीं करने चाहिए। सच इंटरव्यूज कैन ईजिली जनरेट पुअर इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमने स्टार्ट में कहा था कि ड्यूरिंग इंटरव्यू द एप्लीकेंट्स ऑल्सो in the process of forming impression of the organization। तो अगर आप इस तरह के stressful interviews करेंगे तो obviously they would be actually having wrong impression or poor impression of the image of the organization। तो इस तरह के चीज़ें नहीं होनी चाहिए। Now here we have discussed these two types of less structured interviews. We have discussed two types of less structured interviews. Now we are going to discuss what are the advantages and disadvantages of interviews. Well, regarding advantages, it provides an evidence of communication and interpersonal skills. So usually most of the jobs में success जो है ना, it depends upon communication or interpersonal skills। जो managerial jobs हैं, supervisory jobs हैं, HR की jobs हैं, administration की jobs हैं, पब्लिक रिलेशंस की जॉब है, सेल्स की जॉब है, वो उसमें कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो एक्चुअली इंटरव्यूज प्रोवाइड an opportunity to assess their communication and interpersonal skills. So this is an advantage of interviews। और फिर इसमें क्या, they may give an insight into candidates' personality and interpersonal style। So here we may judge their personality types or interpersonal styles कि ये क्या इसकी dominant personality है, क्या इसकी बहुत ही एक्सट्रोवर्ट किस्म की पर्सनैलिटी है, और इसका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का स्टाइल क्या है, इसका नेगोशिएशन का स्टाइल क्या है, या इसका लीडरशिप का स्टाइल क्या है, हम ये चीज़ें देख सकते हैं। वेल, इंटरव्यूज़ आर वैलिड व्हेन दे फोकस ऑन जॉब नॉलेज एंड स्किल्स एंड नॉट ऑन एबिलिटीज़। तो यहाँ पे हम उसके जॉब नॉलेज या स्किल्स को असेस कर सकते हैं कि आपके जी प्रेजेंटेशन स्किल्स के हैं, आपके मैनेजमेंट स्किल्स के हैं, आपके शेड्यूलिंग के क्या स्किल्स हैं, ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं, उसका नॉलेज चेक कर सकते हैं। लेकिन एबिलिटीज़ को चेक करना, उसकी IQ, कॉग्निटिव एबिलिटी या फिजिकल एबिलिटी या दूसरी चीज़ें एप्टीट्यूड मेजर करना, इट्स नॉट पॉसिबल। सो इट वुड बी interviews are valid the moment we are going to check their knowledge and skills, and they may be totally invalid the moment we are going to check their ability, that can be better checked through certain pre-designed test। IQ या आपने उसके aptitude interviews में नहीं check करने। Now on the other hand, we are going to see the disadvantages of interviews। These interviews may actually give rise to subjective assessment, ठीक है ना, और thus they may be invalid or biased against different groups। So interviews में क्या होता है कि हम देखते हैं कि ये जो applicant है ये is similar to me, इसकी एज या इसकी ऑक्यूपेशन या इसकी एजुकेशन या इसकी यूनिवर्सिटी मेरी है, तो इसलिए इसे हायर होने। सो सब्जेक्टिविटी या बायसनेस के इसमें चांसेस हो जाते हैं इंटरव्यूज में। सो इट कैन बी एक्चुअली एलिमिनेटेड बाय कंबाइनिंग दिस इंटरव्यू विद सर्टन अदर प्रैक्टिसेस। टेस्ट कर लें, उसके बाद कोई उसके एक्सपीरियंस का चेक लगा दें, उसकी GPA का चेक लगा दें, डिफरेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ले लें, तो ये डिफरेंट मेजर्स थ्रू विच वी कैन ओवरकम दिस सब्जेक्टिविटी और बायसनेस दैट मे बी introduced by the way of interviews। It's costly to conduct interviews because it requires a person fully devoted to conduct interview, and it needs a panel of experts to conduct that interview। तो ये costly है, मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता इंटरव्यू कंडक्ट करने का। तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि जी इट्स नॉट ईजी टू कंडक्ट इंटरव्यू बिकॉज इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट एज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। Well, interviews require candidates to be brought to one location। तो इंटरव्यू क्या करना आसान नहीं है,
it needs that all of the applicants should be present at one central location. तो जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर है वहाँ पे सारे लोग इंटरव्यू देने जाएंगे या नहीं, दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ इंटरव्यू, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरव्यू. अदरवाइज आपने टेस्ट करने हैं तो एक ही टेस्ट एट अ टाइम कराची में भी, इस्लामाबाद में, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, हर जगह हो रहा होता है. लेकिन अगर आपने इंटरव्यू करना है तो एक ही सेंट्रल लोकेशन पे हो सकेगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इंटरव्यू. Now moving further, now we are going to discuss who would be there to conduct interviews. Who does interviews? Interviews may be conducted for entry-level jobs by HR representative alone. कुछ कह लें कि मैनेजमेंट ट्रेनीज रखने हैं या सर्टन लोअर लेवल जॉब्स के लिए प्रोडक्शन सुपरवाइजर या अपने हेल्पर्स रखने हैं, वो हो सकते हैं, कंडक्ट हो सकते हैं HR रिप्रेजेंटेटिव से सिंगल. अच्छा, जो मैनेजरियल या हायर पोजीशंस है दैट आर फिल्ड बाय यूजिंग मल्टीपल इंटरव्यूज, एक से ज़्यादा इंटरव्यूज हैं और यूजुअली दे मे बी कंडक्टेड इन पैनल आर्ट थ्रू टीम्स. अच्छा, अब इंडिविजुअल इंटरव्यू, सो कह लें इट मे बी कंडक्टेड बाय ईदर HR पर्सन और लाइन मैनेजर. और मैनेजरियल पोजीशंस के लिए जो यूज़ होते हैं इंटरव्यू, सो दे मे बी कंडक्टेड ईदर इन panel interview or team interview. In panel interview there are several interviewers that interview the candidate at the same time, so there is possibility that multiple raters would be assessing the respondent or candidate. अच्छा, team interview में क्या है जी, applicants are interviewed by the team members with whom they will work. तो इसमें थोड़ा फ़र्क है. पैनल इंटरव्यू में पैनल क्या है, डिफरेंट डिपार्टमेंट से लेके बनाया जा सकता है. टीम इंटरव्यू में वो जिस टीम में उसने इंडक्ट होना है उसी में उसको वही टीम मेंबर्स उसके इंटरव्यू कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जॉब डिज़ाइन के, तो उसमें सेल्फ मैनेज वर्क टीम्स बनाती हैं ऑर्गेनाइजेशन. तो उसमें हमने कहा था कि ये टीम्स जो है ना ये ऑथोराइज्ड हैं, दे वुड बी सिलेक्टिंग देयर मेंबर्स बाय देमसेल्फ, तो ये हायरिंग भी खुद करते हैं. सो दिस is we are discussing here. अच्छा, अब इसके टीम इंटरव्यूज क्या है जी, these interviews provide judgments of more than one person, thus avoiding biasness. तो टीम इंटरव्यू और पैनल इंटरव्यू में क्या है, ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो it may be there are chances that they may avoid biasness. अच्छा, another option to conduct interview is through computers. तो candidates क्या है, required to sit at a computer, enter the replies to the questions that are presented by the computer. तो उसमें वो सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं. आपका पास एक्सपीरियंस, आपकी क्या लगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस जॉब्स में, आपके अचीवमेंट्स, आपके इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें कंप्यूटर को टाइप करके देता जाता है एप्लीकेंट. अच्छा, this technique, computer interviews, is useful to gather objective data. It cannot be used to assess their people or interpersonal skills. तो इंटरव्यू जो हैं जब पर्सन्स करेंगे, पीपल करेंगे तो उसकी और है यूटिलिटी, जब कंप्यूटर करेगा तो उसकी पर्पस या यूटिलिटी और हो जाएगी. व्हाट इज नेक्स्ट? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी कैन कंडक्ट इफेक्टिव इंटरव्यूज. While conducting effective interviews, first of all, we are to put the applicant at ease, that this person should be out of any anxiety or stress. अच्छा, हमने इंटरव्यू को प्लान करना है. हमारे पास पहले जॉब डिस्क्रिप्शन हो, एम्प्लॉय स्पेसिफिकेशन हो, हम क्वेश्चन सारे लिख लें, हमें आइडिया हमें कैसे चाहिए, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी देर में ये प्रोसेस कंप्लीट होगा. सो वी शुड हैव ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट इंटरव्यू. Next, we should be required to exert control. What information we need, how we would be collecting information, and at what time we would be actually deciding about that no more information is needed. Control क्या है, इंटरव्यूअर के पास होना चाहिए. ये ना हो कि आपको वो एप्लीकेंट कहानी सुनाना शुरू हो गया, आप उसकी कहानियाँ सुनने बैठ गए हैं. ठीक है ना, ये ना हो कि जी एक से आपने 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया, अगले से आपने 45 मिनट्स में इंटरव्यू. सो यू शुड बी एक्चुअली एक्सर्टिंग द कंट्रोल ओवर द इंटरव्यू. नेक्स्ट है जी, वी आर टू यूज इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स. तो आप उससे पूछेंगे in terms of how, what, where, describe your responsibilities, or how you would be able to do this this difficult task. इस तरह आपने पूछना है. Questions उसको आपने present करने. Questions, opinions नहीं लेनी उनसे. अच्छा, you should be required to listen.
So you are required to let the candidate do most of the talking. वो ज़्यादा बोले, आप कम बोलें, आपने उनको सुनना है. यूजली 30 to 40% इंटरव्यूअर बोले, बाकी 60-70% इंटरव्यू बात करें. अच्छा, आप उसमें फिर नोट्स लें, ठीक है ना, जो चीज़ें काम की है, जो रेलेवेंट है, वो आप उसमें नोट करते जाएं. एट द इंटरव्यू मेक श्योर दैट कैंडिडेट नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट. तो आपने उससे बताना है कि व्हेन यू वुड बी इन्फॉर्मिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ दिस इंटरव्यू एंड हाउ or by how they would be contacting the company, or they, how or at what time they may receive an offer or receive a letter about further interview. तो उसको आपने एट द एंड बताना है कि जो नेक्स्ट इसमें क्या हुआ, प्रोसीजर में नेक्स्ट क्या है, ये सारा आपने एंड में उसे बता देना. और कब आपको कॉल आएगी, कब आपको लेटर आएगा, ये आपने उसे इन्फॉर्म करना है. अच्छा, आप इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, कैसे क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं. ऐसे नहीं जिसके क्वेश्चंस जिसके आंसर यस नो में हो, ठीक है ना. आपने ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिसके आंसर वो डिटेल में दे सके. आप पूछेंगे आर यू हार्ड वर्किंग, वो कहे यस, ठीक है ना. सो यू हैव टू एक्चुअली रीफ्रेज इट दैट हाउ यू वुड एक्सप्लेन योर क्या लेके फोकस और योर कंसिस्टेंसी ऑन वर्क. तो वो अब उसे उसमें बताना पड़ेगा कैसे वो एक्सप्लेन करें कि आई एम हार्ड वर्किंग. यू शुड नॉट बी आस्किंग क्वेश्चन दैट रेयरली प्रोड्यूस अ ट्रू आंसर, ठीक है ना. आप उससे पूछेंगे व्हाट टाइप ऑफ रिलेशंस डू यू हैव एट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कहेगा वेरी फाइन रिलेशन, ठीक है ना. तो ऑब्वियस जो आंसर्स हैं वो नहीं, आपने उस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछने, वो नहीं क्वेश्चन पूछने जिसमें ट्रू आंसर कभी वो देगा ही नहीं, ठीक है. और लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछने जिसमें आप खुद ही आंसर उसे दे देते हैं. डू यू लाइक अ चैलेंजिंग जॉब, ऐसे सार हिला देते हैं. दिस वुड बी अ लीडिंग क्वेश्चन. यू शुड नॉट बी आस्किंग क्वेश्चन दैट आर नॉट जॉब रिलेटेड. तो आप उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैरिटल स्टेटस, फलां बच्चे कौन से स्कूल में जाते हैं, ये चीज़ें नहीं पूछनी. क्लियर. These are the few tips in order to conduct effective interviews. Now we are going to discuss. This slide shows questions that you can ask during interview. So there are different categories. General questions आप कुछ पूछ सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्वेश्चंस अबाउट मोटिवेशन, क्वेश्चन अबाउट वर्किंग विद अदर्स हो सकते हैं, और इंटेग्रिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं. आगे चलते हैं जी. हाउ वी कैन अवॉइड कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स. अच्छा, इसमें कौन सी मिस्टेक्स हैं. फर्स्ट वन इज स्नैप जजमेंट्स. इंटरव्यूअर क्या करता है, फर्स्ट फ्यू सेकंड्स में इंप्रेशन बना लेता है कि दिस इज गोइंग टू बी सुटेबल कैंडिडेट और अनसुटेबल कैंडिडेट. जैसे ही एंटर होता है, बाय लुकिंग एट दैट पर्सन, उसकी चाल, ड्रेसिंग, उसकी कॉन्फिडेंस, उसके हैंडशेक, ठीक ना, उसने परमिशन सी किया नहीं, इसकी बेस पे वो कहता है नो आई हैव फाइनलाइज्ड द सिलेक्शन. दिस शुड नॉट बी द केस. वेल, व्हाट Snapchat interviewers make snap judgment about applicants during the first few minutes, even first few seconds में वो बना लेते हैं. This should not be the case. Actually, you should be forming your judgment after you have collected all information. अच्छा जी, अब इसमें नेक्स्ट है जी नेगेटिव एम्फेसिस होता है. इंटरव्यूज में नेगेटिव एम्फेसिस होता है. ये क्या चीज़ है, इंटरव्यूअर्स टेंड टू बी मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनफेवरेबल देन फेवरेबल इंफॉर्मेशन. तो जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो तो इसके ज़हन में रह जाएंगी. किसी एक नेगेटिव असेसमेंट की बेस पे वो कहेगा कि ये दिस पर्सन इज़ नॉट रिकमेंडेड, लेकिन ये नहीं हो सकता उसकी 10 पॉजिटिव हों, उसकी बेस पे वो उसे रिकमेंड नहीं करेगा. नेगेटिव को बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है इंटरव्यू में. तो एक्चुअली इंटरव्यू असेसमेंट इस चीज़ पे होती है कि हाउ मैनी नेगेटिव थिंग्स आर रिलेटेड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन. सो द पर्सन हु स्कोर्स लेस नेगेटिव एट्रीब्यूट्स वुड बी गोइंग टू रिसीव एन जॉब ऑफर. अच्छा, इसमें अगर आपकी नेगेटिव इंप्रेशन बन गया है तो उससे पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है. इफ इन फर्स्ट फ्यू अगर उसने नेगेटिव बना लिया, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई है कि इसकी तो जीपीए बहुत कम है,
वो अब बैठ जाएगा, ठीक है। इसकी यूनिवर्सिटी बहुत माठी है, आराम से बैठ जाएगा, उससे नहीं कर। लेकिन आपके जो पॉजिटिव ट्रेड्स हैं, आपकी जीपीए बहुत अच्छी है, आपकी दूसरी चीज़ें अच्छी हैं, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन एक नेगेटिव आखिर में आएगी कि इसकी यूनिवर्सिटी तो इतनी अच्छी नहीं है, वो तो बहुत ही कह ले कि लो क्वालिटी के प्रोड्यूस करते हैं ग्रेजुएट्स। तो एक नेगेटिव चीज़ आपकी सारी पॉजिटिव चीज़ों को, अच्छी जीपीए को, अच्छे आपके फील्ड को, अच्छे आपके एक्सपीरियंस को, सारी चीज़ों को डाउन प्ले कर देगी। नेगेटिव एम्फेसिस ज़्यादा होता है इंटरव्यू में, इस तरह नहीं होना चाहिए। हॉलो इफेक्ट है जी, here interview allows prominent characteristics to overshadow the other evidence। तो उसमें एक चीज़ की बेस पे हम रेस्ट ऑफ द थिंग्स को क्या लेके अंडर एस्टिमेट करते हैं और एक चीज़ को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि जी दिस पर्सन ये टीवी में आया है, ये एथलीट है, ठीक है ना, या इसने इस हाई फाई यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई किया है। तो एक चीज़ की बेस पे हम रेस्ट ऑफ द थिंग्स को क्या लेके डाउन रखते हैं। दिस इज हॉलो इफेक्ट। और इसी तरह इसका अपोजिट है, इसे हम कहते हैं डेवल्स हॉर्न, कि किसी एक नेगेटिव की बेस पे उसे हम ओवरशैडो कर देते हैं और बाकी जो पॉजिटिव है उसे डाउन प्ले कर देते हैं। तो दिस हॉलो इफेक्ट और डेवल्स इफेक्ट शुड बी अवॉइडेड, शुड नॉट बी लेट इनटू प्ले। अच्छा, देयर आर सर्टेन बायसेस एंड स्टेरियोटाइप्स, अनदर मिस्टेक दैट वी कमिट ड्यूरिंग इंटरव्यू। हम पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बेस पे चले जाते हैं कि ये इसका ताल्लुक मेरे शहर से है, इसकी फैमिली भी मेरे वाली है, इस तरह, या इसकी यूनिवर्सिटी भी सेम है। अपने साथ जैसे आप लाइकिंग देखते हैं ना, तो उसमें फिर बायसनेस हो जाती है। आप यू टेंड टू हायर, यू टेंड टू रिकमेंड दैट पर्सन, सो दिस शुड नॉट बी द केस। सो स्टीरियोटाइपिंग किसी एक पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर क्लैन और पर्टिकुलर सिटी के साथ कोई चीज़ अटैच करते हैं, ये लोग तो इसी तरह होते हैं, ये सारे लोग कह ले के इनकम्पिटेंट हैं, ये अगर इस शहर से या इस सूबे से है तो इसकी इस किस्म की ट्रेड्स। इफ वी एक्चुअली attribute general characteristics to a particular person that belongs to a particular society, area or city, then it is stereotyping. This should not be happen within interview. अच्छा, कैंडिडेट ऑर्डर, ये भी एक एरर होती है कि रिसर्च शो करती है कि अगर शुरू में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट आते हैं एप्लीकेंट, उसके बाद एक एवरेज आता है, तो उसकी कह लें कि रेटिंग, उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस उससे भी डाउन हो जाते हैं। अगर बहुत ही पुअर कैंडिडेट आते हैं, उसके बाद एक एवरेज आता है, तो उसकी रेटिंग एवरेज से भी ज़्यादा कर दी जाती है। दिस इज कंट्रास्ट इफेक्ट, कंट्रास्ट ऑर्डर एरर। अच्छा जी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी चेक करनी चाहिए इंटरव्यूज की। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं जी, इंट्रा-रेटर एबिलिटी, intra-rater within a rater. So this is actually ability of interviewers who are consistent in their ability to select individuals who will perform well. तो एक बंदा consistently बड़ा अच्छा जज करता है उन लोगों को जो अच्छा परफॉर्म करे। दिस इज इंट्रा-रेटर रिलायबिलिटी। दिस पर्सन, दिस इंटरव्यूअर कैन बी रिलाइड इन ऑर्डर टू असेस देयर फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस। और दूसरी है जी इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। दिस इज द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट इंटरव्यूज, अब क्या वो इंट्रा-रेटर एक ही रेटर की, यहाँ पे ज्यादा रेटर्स हो गए, दिस इज इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। सो दिस इज द एक्सटेंट टू विच different interviewers agree in the selection of individuals who will perform well. तो अगर एक ही इंडिविजुअल पे ज्यादा लोग एग्री करते हैं कि ये अच्छा है, ये इसमें बेस्ट परफॉर्म है, टॉप परफॉर्म होगा, सो दिस इज इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। Well, we can say that unstructured interviews are less reliable and less valid than structured interviews. ठीक है, तो ये हम शुरू से कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वो ज़्यादा रिलायबल है, जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वो लेस रिलायबल है। नेक्स्ट है जी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन हमने करनी है कि एप्लीकेशन और रिज्यूमे, application resume contain factual information that may have certain misstatements and significant omissions. So हमने उसको चेक करना है कि कितना है उसमें consistency of information. So we would be checking their past salary, experience, former job title, उनकी credit history, उनकी criminal record, सारी चीज़ चेक in order to check their in order to have their background investigation. ये important हो गया आजकल certain security की jobs के, certain finance से related jobs में।
अच्छा जी, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कैन बी कंडक्टेड बिफोर और आफ्टर फाइनल इंटरव्यू, उससे पहले या बाद में, यूजुअली बिफोर वी आर गोइंग टू ऑफर अ जॉब वी वुड बी कंडक्टिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। वेल दिस मे प्रूव बेनिफिशियल टू मेक सिलेक्शन डिसीजन, इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। This should be sought from should not be sought from relatives, friends, but from previous employers and supervisor। तो relative या friend तो उसके बारे में कोई negative information नहीं देंगे, आपने कहाँ से लेनी है, relevant और valid information कहाँ से लेनी है, previous employers और previous supervisors से। अच्छा, ये background can be checked through telephone, सोशल नेटवर्किंग, वेबसाइट, ये फेसबुक, ट्विटर, ये यूज़ होती हैं इन ऑर्डर टू चेक देयर रेफरेंसेस के उनके इंटरेस्ट, उनकी हिस्ट्री, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके रिकॉर्ड क्या है। अच्छा, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं जैसे हम कहते हैं प्री एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये आउटसोर्स कर सकते हैं। दिस वाज समथिंग अबाउट बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन। नाउ ऑर्गेनाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेक्शन डिसीजन, फाइनल डिसीजन आप ऑर्गेनाइजेशन ने करना है। सो the selection decision is straightforward if you use only one predictor। आपने एक टेस्ट किया है, एक सिर्फ इंटरव्यू लिए हैं, ठीक है ना, आपने सिर्फ उनकी जीपीए यूज़ की है, सिर्फ उनकी टाइपिंग स्पीड यूज़ की है, इसके बेस पे तो सिंपल आप उसमें चेक कर लेंगे क्या क्या रैंकिंग है और उस रैंकिंग के बेस पे हम उनको जॉब ऑफर कर देंगे। बट प्रैक्टिकली सिलेक्शन इज नॉट सिंपल बिकॉज वी यूज़ मल्टीपल प्रीडिक्टर्स एंड देन वी वे द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के इंटरव्यू के कितने मार्क्स हैं, एजुकेशन के कितने मार्क्स हैं, टेस्ट के कितने मार्क्स हैं, फिजिकल जो उसकी फिटनेस है उसका कितना वेटेज है, ये हम चेक करते हैं। अच्छा, इसमें दो डिफरेंट अप्रोचेस, एक इंट्यूटिव या जजमेंटल हो सकती है और एक स्टैटिस्टिकल हो सकती है। इंट्यूटिव में सिंपल हम असेस कर लेंगे कि जी अब फाइनल डिसीजन क्या करना है। स्टैटिस्टिक हम मैथमेटिकल अप्रोच में हम ईच एंड एवरीथिंग को हमने पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इसके इतने पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल पॉइंट्स वी वुड बी मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन। अच्छा, इट क्वांटिफाइज, जो सिलेक्शन डिसीजन है इसमें ये इट क्वांटिफाइज एंड कंबाइंस ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू कलेक्ट अबाउट द कैंडिडेट। अब हमने क्या है कि उसको क्वांटिफाई करना है और सारी चीज़ों को कंबाइन कर, बिकॉज वी आर यूजिंग मल्टीपल प्रिडिक्टर्स, सो वी आर टू क्वांटिफाई एंड वी आर टू एक्चुअली combine all the information the moment we are using this statistical or mechanical approach। तो इसमें दो डिफरेंट मॉडल्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं हम जब कंबाइन करते हैं इंफॉर्मेशन। एक मल्टीपल हर्डल मॉडल है, इसमें क्या है कि डिफरेंट जो स्टेप्स हैं सिलेक्शन के, तो उसमें ईच स्टेप पे हम कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई करते जाते हैं। सो दिस इज प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ सिलेक्शन डिसीजन बाय एलिमिनेटिंग सम कैंडिडेट्स एट ईच स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। और नेक्स्ट है जी कंपनसेटरी मॉडल। तो इसमें क्या, द प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट अ सिलेक्शन डिसीजन इन विच अ वेरी हाई स्कोर ऑन वन टाइप ऑफ असेसमेंट कैन मेक अप फॉर अ लो स्कोर ऑन अनदर। हम एक लॉट लेते हैं 20, जैसे ISFC के लिए जाते 20 शुरू करते हैं, उनके इंटरव्यू या उनके लीडरशिप स्किल्स या उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी मेडिकल, सारी चीज़ें हम सब की चेक करो। एट द एंड वी आर गोइंग टू मेक द फाइनल डिसीजन। तो अगर सारे प्रोसीजर में सारे को हम करते हैं, कहीं पे ड्रॉप नहीं करते 4-5 स्टेजेस में, सो दिस इज कंपनसेटरी मॉडल। इसमें एक में कम एबिलिटी कंपनसेट कर सकती है दूसरी चीज़ों को। नेक्स्ट इज द ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू मेक द फाइनल जॉब ऑफर। तो अब जिनको हमने सेलेक्ट करना है उनको हमने ऑफर देनी है। दिस इज अ फॉर्मल, वी आर टू फॉर्मलाइज द ऑफर विद द लेटर टू द एप्लीकेंट। हम लेटर लिखेंगे, कहीं पे फ़ोन भी होते हैं। दिस लेटर शुड क्लियरली स्टेट द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क शेड्यूल, रेट ऑफ पे, स्टार्टिंग डेट और अदर रेलिवेंट डिटेल्स इसमें आनी चाहिए इस लेटर में। अच्छा, इसमें क्या नहीं करना, अवॉइड वेग जनरल स्टेटमेंट्स एंड प्रोमिसेस अबाउट बोनसेस एंड वर्क शेड्यूल्स, ये आपने नहीं करनी, जो अब बाद में चेंजेस हो सकते हैं वो नहीं करनी। अच्छा, here this letter may require a return of a signed acceptance of the offer। तो आपका जो लेटर जाता है उसमें आप मेंशन करेंगे आप इसको साइन करके हमें रिटर्न करेंगे और कॉपी अपने पास रख लें। दिस वाज मेकिंग फाइनल ऑफर। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस डू आल्सो एक्सटेंड सर्टेन रिलोकेशन असिस्टेंस टू एम्प्लॉयज हु हैव बीन सिलेक्टेड। अब उनको आपने रिलोकेट के लिए असिस्टेंस देनी, सो एम्प्लॉयज में ऑफर रिलोकेशन असिस्टेंस फॉर सिलेक्टेड इंडिविजुअल हु लिव अवे। So it may cover moving expenses, house hunting trip cost,
ठीक है, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, ये क्यों हम करते हैं? बिकॉज इट सेट्स अ टोन फॉर द वे अ न्यू एम्प्लॉय व्यू देयर जॉब्स। वो अपने जॉब्स को कैसे देखते हैं, जब आप रिलोकेशन में उसको असिस्ट करते हैं तो उनकी फेवर ऑफ इंप्रेशन बनते हैं अबाउट योर जॉब और अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन। वेल, इट इनेबल्स न्यू एम्प्लॉयज टू बिकम मोर प्रोडक्टिव मोर क्विकली। आप जितना ज़्यादा उनको असिस्ट करेंगे, वो आपके लिए काम करने आ रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वो अपने को जल्दी एडजस्ट करेंगे और अपने आप को प्रोडक्टिव करेंगे, बिकॉज दे सी दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न्ड विद देयर नीड्स। फाइनल इसमें डिसीजन होता है जो प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। वेल, एक्चुअली प्लेसमेंट इज फिटिंग द पर्सन टू द जॉब. It can be discussed from two different perspectives. First thing is person job fit. Here we are to match the knowledge, skill and abilities of people to the characteristics of job. जो जॉब की characteristics हैं, हम उसके साथ person की characteristics मैच कर रहे हैं. अच्छा, इसका benefit क्या होगा? Employee performance would be high. Performance of productivity would be high. Here we need lower training and operating cost. उनको ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो जो काम करना है वो आराम से करेंगे. अच्छा, इट में रिजल्ट इनटू लोअर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म. इससे भी ज़्यादा ना एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहते हैं पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फिट. वेल, दिस इज द कंग्रुएंस आर फिट बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स. Actually, it is important when general factors of job success are as much important as specific knowledge, skill, एबिलिटीज आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कहा है कि जी केएसएस इम्पोर्टेंट है पर्सन जॉब फिट में. केएसएस भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वी शुड बी एक्चुअली चेकिंग द वैल्यूज. ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू क्या है, कल्चर क्या है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ट्रेडर्स क्या है, customs क्या है, ऑर्गेनाइजेशन हिस्ट्री क्या है. ऑल ऑफ दीज थिंग्स शुड बी मैच्ड विद पर्सनल वैल्यूज, उसकी पर्सनैलिटी, ठीक है ना, उसकी डिफरेंट स्टाइल्स, उसके साथ मैच आपने, सो दैट दिस पर्सन कैन बी अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय विद दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द लॉन्ग रन. Well, this was all about lecture 8. This here is the summary of lecture 8. In this lecture, we have discussed selection interview, types of selection interview, structured, unstructured, advantages and disadvantages of interview. Here we have discussed certain tips for effective interview. How we can check the reliability and validity of interviews. How we can go for background investigation. Then we have discussed how to make final decision, selection decision. इसमें हमने कहा कि दो different approaches है, judgment की बेस पे या mathematical और mechanical approach हो सकती है. Making the job offer कैसे होगी, letter लिखेंगे या आप phone करेंगे. letter में बहुत specifically चीज़ें होनी चाहिए, job related, job description होनी चाहिए, उसकी time होना चाहिए, salary होनी चाहिए और दूसरी expected चीज़ें हो सकती. इसमें कोई vagueness नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें जो बाद में change हो जाएं. ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को इम्प्रूव करने की रिलोकेशन असिस्टेंस भी देते हैं और प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉइज में भी उनको सपोर्ट करते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर 8. दीज आर रेफरेंस बुक्स फॉर दिस लेक्चर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रॉबर्ट मैथस, जॉन जैक्सन. फंडामेंटल्स ऑफ HRM, रेमंड नो, John Hollenbeck, Barry Gerhardt, Patrick Wright, and finally a framework for HRM by Gary Dessler. Students, this was all about lecture 8. Thank you very much.